خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ودیسی کرنسی اور روپے کا کھیل، مہنگائی کی موٹر وے پر ڈالر کی بریکیں فیل ہو گئیں۔ انٹر بینک میں ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک دن میں ڈالر 24 روپے 11 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 255 روپے کا ہو گیا۔ ودیسی کرنسی اور روپے کا کھیل، مہنگائی کی موٹر وے پر ڈالر کی بریکیں فیل ہو گئیں۔ انٹر بینک میں ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک ہی دن میں ڈالر 24 روپے 11 پیسے مہنگا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 255 روپے کا ہو چکا ہے۔ اس وقت ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن میں ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ایک دن میں امریکی ڈالر 24 روپے مہنگا ہو کر 255 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ ظفر پراشا نے کہا کہ ڈالر اب اصل قیمت پر آ گیا ہے، اس کو مستحکم ہونے میں وقت لگے گا، مگر ڈالر کی سپلائی نہ ہوئی تو مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، اشرف خان کے ساتھ وہ موجود ہیں، اشرف سے جان لیتے ہیں۔ اشرف بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا؟ دیکھا جائے انٹر بینک ہو یا اوپن مارکیٹ ہو، دونوں میں نئے ریکارڈ بنے۔ ایک دن میں انٹر بینک میں 19 روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے 12 روپے مہنگا ہوا ہے، نئی ریکارڈ سطح قائم کر دی ہے۔ اس کا معیشت پہ کتنا اثر ہوگا اور ڈالر مزید کہاں تک جا سکتا ہے، یہ جانتے ہیں۔ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراشا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جناب، یہ تو تقریباً 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے جو بیرونی قرضے ہیں 120 بلین ڈالر کے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کم سے کم 2500 ارب روپے کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ جو ریٹ میں سمجھتا ہوں صرف آپ کو کاغذوں میں بڑھا ہوا نظر آیا، یہ ڈالر کا ریٹ آلریڈی بڑھا ہوا تھا، کیونکہ جو بینکس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے وہ آلریڈی 258 پہ ہماری ڈیلنگ ہو رہی تھی، اور ہم نے اس کو اپنا سیلف امپوز کیا ہوا تھا جو کیپ تھا۔ تو ہم مجھے کے بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارا یہ ٹول جو تھا ٹوٹلی فیل ہو گیا، چاہے وہ اوپن مارکیٹ میں ہو چاہے انٹر بینک کے اندر ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کل ہم نے پہلے کیپ ہٹایا، وہ تقریباً 10 روپے کا کیا تھا، پھر کل ہم نے اس کو واپس کیا نیچے، لیکن مارکیٹ فورسز جو تھیں انہوں نے اس کیپ کو توڑ دیا، اور پھر یہی آپ نے دیکھا جو ہم نے بولڈ سٹیپ لیا، ہم کو دیکھتے ہوئے ہمارے پیچھے بینکس آئے اور انہوں نے بھی انٹر بینک کے اندر اس کو کیپ کو ختم کیا۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا، شدید کنسرن دیا، اور سب سے بڑی بات کہ ڈالر جو ایک دن میں 1900 روپے سے زائد جو مہنگا ہوا ہے، تو پاکستانی روپے میں بیرونی قرض میں 2300 ارب روپے کا بوجھ بڑھ گیا۔ ساتھ ہی اگر ایک ڈالر جو ایک دن میں 19 روپے مہنگا ہوا تو درآمدی لاگت بڑھ گئی، جس سے مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ۔ اشرف بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی نے لی مارکیٹ کی قدیم لیدر مارکیٹ بھی سنسان کر دی۔ 800 سے 1000 روپے فی گز ملنے والا چمڑا 1600 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تفصیلات کاوش میمن سے جانتے ہیں۔ جی کاوش۔ جی بالکل، میں کراچی کی ایک ایسی قدیم مارکیٹ میں موجود ہوں جس کو لی مارکیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر چپلوں اور جوتوں کا بہت بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کاروبار کے یہاں پر مینوفیکچر بھی کیا جاتا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جو چائنا سے امپورٹ ہو کر لیدر آتا ہے اس کی قیمتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ یہاں پر کاروباری سرگرمیاں ہیں جو شدید طریقے سے متاثر ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ ایک مینوفیکچر موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیں کس قدر مشکلات ہیں، کاروبار کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہو گیا، ابھی تو ہم کھا پی بھی کچھ نہیں سکتے، کیونکہ مشکلات اتنا ہو گیا ہے۔ بھئی یہ جو چیزیں چینے سے ہو کے آتی ہے نا، یہ پہلے ابھی 1000 روپے 800 روپے ہمارے کو گز ملتی تھی، ابھی 1600 1700 1400 روپے گز مل رہی ہے، اور پھر مال بھی ہمارے کو نہیں مل رہا۔ ایک ہوتا ہے نا مال ملنا، ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس مزدور اچھے خاصے 30-35 مزدور تھے، ابھی ہمارے پاس 8-10 مزدور ہیں۔ کس بات پہ 8-10 مزدور ہیں؟ ابھی ہمارے پاس نہ مال ہے نہ مٹیریل ہے، مال لینے جاتے تو بولتے شارٹ ہے، مال نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد پھر ابھی مزدور ہے، مزدوروں کو بھی چھٹی کرائی ہوئی ہے ہم نے۔ مینوفیکچرز ہیں وہ اس سلسلے میں شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مزدوروں کو فارغ کیا جا رہا ہے کیونکہ کاروبار نہیں ہے۔ یہاں پر شہر کی سب سے قدیم مارکیٹ ہے، اور مینوفیکچر نے بتایا کہ ایک وقت میں یہاں 8 سے 10 مزدور کام کیا کرتے تھے، لیکن حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ اب 2 سے 3 مزدوروں کو۔ کاوش آپ کا بہت شکریہ۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ اسلام آباد میں کوہسار پولیس نے فواد چودھری کا ابتدائی بیان قلم بند کر لیا۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے فواد چودھری سے سوال کیا کہ کس کے کہنے پر یہ بیان دیا۔ فواد چودھری نے کہا کسی کے کہنے پر ایسا بیان نہیں دیا، جو محسوس کیا وہی بولا۔ اسلام آباد میں کوہسار پولیس نے فواد چودھری کا ابتدائی بیان قلم بند کر لیا ہے۔ بات کرتے ہیں فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रात जो है वो गिरफ्तार किया गया था और लाहौर से इस्लामाबाद भी मुंतकिल किया गया था। ताहम इस वक्त थाना कोसार पुलिस की हिरासत में है। ज़राए का कहना है कि कोसार पुलिस ने फवाद चौधरी के इब्तदाई बयान कलम बंद कर लिया है। पुलिस की जानिब से पूछा गया है कि किसके कहने पर यह बयान दिया, जिससे फवाद चौधरी का जवाब था कि किसी के कहने पर ऐसा बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वही बोला। पुलिस की जानिब से मजीद पूछा गया कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कहाँ पर है, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मोबाइल फ़ोन गिरफ्तारी के पास था जबकि लैपटॉप घर पर होगा। पुलिस हुकाम ने यह भी पूछा कि क्या रियासती अदारों को तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त बात है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, कोई इंतजार फैलाने की कोशिश नहीं की और न ही मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। ताहम ज़राए ने बताया कि बयान कलम बंद होने के बावजूद पुलिस ने इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। जब तर्जुमान पुलिस से इस पे राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, फिलहाल वो इस पे मौक़िफ़ नहीं दे सकते। जी ठीक है फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। एक बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुसद्दिक मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि 45 दिन के अंदर, और ये 45 दिन का जो मैं जिक्र कर रहा हूं ये मैंने नहीं कहा, ये रूस से आए हुए वफद के जो लीडर थे उन्होंने जिक्र किया कि वो मामला जो 45 दिन पहले शुरू हुआ था वो आज हमने खत्म कर दिया और आपके सामने वो मुआहदे हो गए, उनके ऊपर दस्तखत हो गए, जिनके तहत ये तय पा गया कि मार्च के महीने तक, मार्च खत्म होने से पहले पहले पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाएगा जिसके जरिए सस्ता खाम तेल जो दोनों मुल्कों के लिए बेनिफिशियल होगा वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। ये तमाम काम जो कई सालों में नहीं हुआ, जो कई दफा आपने लोगों को जेबों से कागज लहराते हुए देखा कि मैं बात कर रहा हूं सस्ते तेल की, मैं बात कर रहा हूं सस्ती, कुछ नहीं हुआ। 45 दिन के अंदर ये मामला तय पा गया और अब इंशाअल्लाह मार्च के अंदर जो हमारी तफसील है तमाम कमर्शियल टर्म्स की वो तय हो जाएगी, साइन हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने मुआहदा किया उसके तहत एक होलिस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी प्लान जो है इस साल के आखिर तक मुकम्मल होगा, जिसमें एलएनजी भी होगी, जिसमें गैस भी होगी पेट्रोलियम के अलावा। इस वक्त उनके पास गैस मुयस्सर नहीं, मगर उन्होंने वादा किया कि अगली सर्दियां, अब ये सर्दियां तो अल्लाह के हुक्म से गुजर गई और आपने देखा कि 10 साल में पहली मर्तबा किसी जगह के ऊपर कोई हंगामा आराई नहीं हुई। जनवरी खत्म होने को है गैस की कमी की वजह से, ये नहीं कि कमी नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं हुई उन औकात में जो खाने पीने के औकात नहीं थे, मगर हत्तुल इम्कान हुकूमत ने कोशिश की और इस मर्तबा किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये भी मुआहिदा किया है कि अगली सर्दियां आने से पहले पहले स्पॉट कार्गो यानी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते उस पे रूस हमें एलएनजी के हमारे साथ कोई 2 कंपनियां उन्होंने पाकिस्तान को कहा है इनके साथ आप मुआहिदा करें ताकि अगली सर्दियों के लिए आपके पास एलएनजी हो। मगर लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले वक्त के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एक होलिस्टिक एनर्जी का मुआहिदा किया जाएगा। होलिस्टिक का मतलब है कि उसमें पाइप गैस भी होगी, उसमें एलएनजी भी होगी, उसमें क्रूड ऑयल भी होगा, उसमें दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी होंगी, जिसके जरिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिलेगी, यानी हर वक्त एनर्जी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। एनर्जी जो आएगी पाकिस्तान में, तेल जो आएगा, गैस जो आएगी वो सस्ते होंगे ताकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो और सस्टेनेबल तरीके से आएंगे, क्योंकि जितनी हम सस्ती चीजें लेंगे उतना ही ज़र्रे मुबादला का बोझ हम पे कम होगा और ये जो सारा दिन ले दे डॉलर रुपए की होती रहती है उसके अंदर हमें फायदा पहुंचेगा और हमारी इंपोर्ट का बिल कम होगा क्योंकि हम सस्ती चीजें खरीद रहे होंगे। ये था वो वादा जो मैंने आपसे किया था और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपके सामने दस्तखत के साथ वो तमाम चीजें वो दस्तखत की शक्ल में आपस में हमारे मुआहदे की शक्ल में आप सबके सामने आ चुकी हैं। आपने रूसी सफीर का भी बयान सुन लिया, आपने हमारे ईएडी के वजीर का भी बयान सुन लिया और आपने उसके बाद मेरा जो तबसरा था वो भी आपने सुन लिया। अब आप देख लीजिए, हमने जो वादा आपसे किया था, जो वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वो वादा पूरा हो गया। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये मुल्क जितने ख्वाब आपकी आंखों में हैं उन सबको लेके आगे बढ़े। एक मां जो अपनी बच्ची के लिए ख्वाब देखती है उसको हम सियासत की नजर ना करें,
ओए तोए की नजर ना करें, हम उस ख्वाब को लेकर आगे बढ़ें। अब उस ख्वाब के रास्ते में रुकावट क्या है? उस ख्वाब के रास्ते में एक उद्यम है, हर तरफ ओए तोए हो रही है। आप ये देखें कि जिस दिन आपने सारी असेंबली को गद्दार करार दे दिया, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, और आपने तमाम ऑपोजिशन को जो एक तरफ बैठी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि वो कह रही थी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं, आपने हिटलर की तरह, भाई खान साहब, हिटलर की तरह आपने आर्टिकल 5 लगा दिया। आपने असेंबली में आके वजीर कानून ने करारदाद पेश कर दी कि इस असेंबली की ऑपोजिशन के ऊपर आर्टिकल 5 लगाया जाए, ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये गैर मुल्की एजेंट हैं, इनसे वोट लेने का हक पार्लिमान में इलेक्ट होने के बाद वोट लेने का हक छीन लिया जाए, यानी वोट लेने। मरी में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद ठंडा हो गया, सयाह खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, मुजस्मों के साथ सेल्फियां भी बना रहे हैं। तफसीलात हैदर अली से जानते हैं। जी हैदर। जी बहुत शुक्रिया। मरी का मौसम हो गया है औसम। इस वक्त मौसम की बात करूँ तो वो इस वक्त कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप आ जाती है। सयाह भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसमें खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले मार रहे हैं। एक मेरे साथ एक सयाह फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो मरी के मौसम में कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय हो रहा है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, स्नो तो नहीं भी हो रही है और वैसे बहुत इन्जॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और मरी आके हमें बहुत सुकून मिला है और दिल था मरी आने को और आज हम आ गए हैं और थैंक्स मरी वालों और घर वालों। आप बताएं। जी बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके और बहुत अच्छा व्यू है और बहुत मज़ा आया है। तो क्या कर रहे हैं आप, बर्फबारी में कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस ये सारी फैमिली साथ है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सेल्फी भी बना रहे हैं और कुछ फन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सेल्फियाँ बना रहे हैं, एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले मार रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मरी का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, इस वक्त खुशगवार हो चुका है। सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त मरी की तरफ जानिब है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग मरी आ रहे हैं अपने साथ गर्म मलबूसात ज़रूर रखें क्योंकि मरी के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका। एक वज़ीर आज़म हाउस में नून लीग की सियासी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गौर किया गया। ख्वाजा आसिफ, फयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर इस इजलास में मौजूद हैं। बात करते हैं अवैस कियानी से। अवैस, इस इजलास के मुतालिक बताइएगा। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में नून लीग की जो पार्टी इजलास है वो इस वक्त जारी है, जिसमें जो सीनियर वफाकी वज़रा हैं नून लीग के वो इसमें शरीक हैं। हमारे ज़राफ़दार हैं शाहिद खलील अब्बासी भी इस इजलास में शरीक हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और दीगर जो है वो इस इजलास में जो है वो शरीक हैं। बेसिकली जो है मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर मशावरत हो रही है और जो लीगी जो रहनुमा हैं वो अपनी आरा और तजवीज़ जो है वो इजलास में बता रहे हैं और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कुछ अहम फैसले भी लिए जाएंगे, जिसमें वज़ीर आज़म जो है बतौर पार्टी सदर के वो रहनुमाओं को जो है वो नई गाइडलाइंस भी देंगे और नई हिकमत अमली जो है मुरतब दी जा रही है। मरियम नवाज का जो लाहौर में जो इस्तकबाल होना है और उसके बाद जो पंजाब और KPK के जो सूबाई जो इलेक्शन है, इंतखाबात जो होने हैं असम्बलियों के और उसके साथ जो दीगर जो मामलात हैं उस पर जो है वो तफसीली मशावरत होनी है और अहम फैसले जो हैं इस इजलास में मुतवक्की हैं और जो पंजाब की जो स्पेसिफिक सूरत हाल है उस पर इस वक्त जो है बातचीत जारी है। ठीक है, पंजाब की सूरत हाल पर भी बातचीत जारी है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे की ज़मीनों की लीज से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा, रियासत का काम कारोबार करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान रेलवे को अवामी इस्तेमाल के लिए ज़मीन लीज पर देने की इजाज़त दे दी। इसी मुतालिक बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे की ज़मीनों की लीज से मुताल्लिक अपील पर समाअत हुई है, जिसमें पाकिस्तान रेलवे ने ज़मीन लीज पर देने का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उस पर पाबंदी हटाने की इस्तदा की है।
जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इदारे जो हैं उनका काम कारोबार करना नहीं होता। जब इदारे कारोबार करना शुरू होते हैं तो फिर जो दूसरे कारोबारी इदारे हैं वो मुतासर होते हैं, और पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपना एक प्लान पेश करे कि वो ज़मीनें अगर लीज पर देता है तो उससे रेवेन्यू किस तरह जनरेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान रेलवे को ज़मीन लीज पर देने पर जो पाबंदी आई थी वो आज हटा दी है, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो अवामी इस्तेमाल के लिए ज़मीन लीज पर दे सकती है, और इसके जो लीज के बाद जो ज़मीन की हैसियत होगी वो भी तब्दील नहीं की जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन पर अगर पार्क वगैरह बने हुए हैं तो वो तामीरात नहीं गिराई जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमानत आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।